This call is now being recorded. Okay. So as you have attended, okay, they reported your attendance over here. We will directly move for our next, right? So good evening once again to everyone and welcome back to geography lecture once again. Okay. So here I go for the presentation. Okay. I hope you are able to see the screen. Okay. Please someone confirm it. Okay, Vinith, Kadambari Vishal, all right. Okay. Vaishnavi, right. Okay. So this is the fourth lesson that we were studying in the last lecture, right? Exogenetic processes part second, right? So do you remember anything about it? I will just scroll it up so that you will able to see the work of rivers and landforms, erosional work of river, transportation and deposition by river. Okay, we studied everything about it. Then work of glaciers and landforms. How glaciers are responsible for different landforms. Okay, so landforms are because happened or formed because of erosional work by glaciers and transportation. Okay, so the same thing we studied for the wind, right? Work of the wind and landforms produced because of the wind. So in wind we have seen erosional work of wind. What happens when erosion takes place because of the agent like wind. Then we also studied what happens because of the depositional work due to wind. What are different landforms that are formed? Okay, that we have seen already till last lecture. And this safe, okay, Yardank, Hamda, all things that we have seen. I think we can start for today from work of sea waves and the landforms. So, have we completed it or not? Do you remember? Did we complete it or not? That is work of sea waves and landforms. Yes, am I audible? Okay, so sea wave is remaining, right? Work of sea waves and what are the landforms that are formed because of these sea waves? Okay, so till now, I hope you guys have gone through everything that what are different landforms and work of the river. Then we studied about wind. Okay, then we studied about glaciers, and now we are going to study about the sea. So till that, still okay. Uh, Today, okay. I hope you guys have revised everything, and anybody having any doubt in that? So okay, विशाल को कोई डाउट नहीं है, कादम्बरी को भी नहीं है, विनीत को भी नहीं है. ओके, तो क्या मैं समझू कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं? Okay, good. This is a sign of a good student, right? Okay, so let's start it. I hope it is visible to everyone. Work of sea waves and the landforms that are formed because of the erosion work of sea water or sea waves. Okay,
So guys, in figure 4.4, you can easily see landforms at sea coast. Basically, sea waves are working or they are striking at sea coast only. Okay. In middle, they are not striking anywhere. They are striking on the rocky platform or any other coastline. Okay. So that's why whatever the landforms are formed, they are present on the coast only. Okay. Sea coast only. So now see, here are different 5 names. Okay. सी केव इज देयर, म्हणजे समुद्री गुहा उसे कहते हैं, समुद्र की जो गुहा बनती है वाटर की वजह से। आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आकर वाटर स्ट्राइक होता होगा, जो वेव्स आती होंगी ऊपर से समुद्र से, तो वो वे क्या स्ट्राइक हो सकती है, इसकी वजह से वहां पर केव बन गया है। अगेन यू कैन सी द सी क्लिफ्स. ओके, also wave cut platform you can also see there. Sea arc you can see over there, arc like structure is there, and sea stakes are there. Okay, so you can easily see here. So one by one we will see everything about it. Okay, so in coastal areas, sea waves carry out erosional, depositional and transportational work. Okay, so where the erosional work takes place, where the depositional work takes place and transportational work takes place, it takes place in coastal areas, because all the waves that are traveling towards the coast. Okay, so their effect is also at the coastal line. Winds and tides cause the movement of seawater, and as a result, waves come to the coast. Okay, what causes the seawater to move? Winds and tides. Because of their hitting the rock at coast, erosion of the rock occurs. Okay, these waves are continuously striking the coastal area, coastal rocks. That's why they are eroding, they are making the erosion of these rocks. In coastal areas having wide beaches, waves carry out depositional work. As we know, okay, आप में से कई लोग बीच पर घूमने के लिए भी गए होंगे, राइट? आपकी कभी ट्रिप भी गई होगी, मुझे नहीं पता आप लोग गए हैं नहीं, लेकिन आप बीच पर देख सकते हैं कि बीच पर क्या होता है, रॉक नहीं रहते हैं, वहां पर क्या रहता है, ओके, सी वेव्स कैरीज डिपोजिशनल वर्क, वहां पर रेती रहती है, राइट? सैंड रहती है, स्मॉल स्मॉल। बेसिकली सैंड क्या होती है, सैंड होती है जो पत्थर इरोडेड होता है तो उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसे सैंड कहते हैं। ओके, सो दैट डिपोजिशनल वर्क टेक्स प्लेस एट बीचेस। Oh, all right. So is it clear to everyone? How the waves are coming, they are eroding the rocks, coastal rocks, and they are depositing the erosional work or the eroded material at sea coast, and it forms the beach. Okay, good. Now let's see the actual erosional work of sea waves. मतलब जो झीज होती रहते, वी कॅन से मराठीमध्ये त्याला झीज होणे असं म्हटलं जातं. ओके, इरोजन म्हणजेच झीज होणे किंवा धूप होणे. So see, when the waves break the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, and sand particles, etc. Okay, what happens when wave break at sea or at coast? मतलब जब वेव समुद्र से बहकर आती है और कोस्ट पर जाकर हिट करती है, वो वहां पर ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर आती है? सो दिस वेव्स ब्रिंग विद देम वाटर, वो वाटर ले आती है। ट्रांसपोर्टेड स्टोन्स, समुद्र में से कोस्ट पे से कुछ स्टोन्स हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसको लेकर आ जाती है वो कोस्ट पर। ऑल्सो पेबल्स होते, पेबल्स का मतलब ओके हम देखेंगे, एंड सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, वेव्स के साथ साथ वो कोस्ट पर आ जाते हैं। दिस लीड्स टू इरोजन ऑफ कोस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो जो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली हिट होते होंगे, जो स्टोन होते हैं छोटे छोटे, इफ दिस स्टोन्स आर हिटिंग द कोस्ट कंटिन्यूसली,
then there will be obviously erosion of the coast. Because of chemical and hydraulic action of sea waves too, erosion occurs. मतलब क्या, हमें पता है कि रॉक में क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, ओके, उस मिनरल्स की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर उसके साथ केमिकली रिएक्ट हो जाता है. हाइड्रोलिक एक्शन मीन्स वाटर की वजह से जो एक्शन टेक्स प्लेस होते हैं उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं. ऑलराइट, फ्लूइड की वजह से, तो उसकी वजह से भी इरोजन टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि किसी समंदर के कोस्ट पे अगर कोई पत्थर होगा, कोई रॉक होगा, तो उसमें मिनरल्स हो गए, वो मिनरल्स डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और वहां पर पोर्स बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे. इसकी वजह से वो क्या होता है, इरोजन होता है. सो लैंडफॉर्म्स लाइक वेव कट प्लेटफॉर्म्स, सी केव्स, सी आर्क, sea cliffs etc are formed because of the erosional work of the waves. अभी देखिए, आप जो ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर से क्या हो रहा है, देखिए कोस्ट चालू हो रहा है, यहाँ पर पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बीच का जो पत्थर आप देख रहे हैं जो कट हो गया है, यहाँ पर होल है बीच में, सी क्लिफ है, सी केव्स है, सी आर्क है, क्या हो गया है, इसमें भी पहले पत्थर था, लेकिन उसको क्या होगा, कंटिन्यूसली सी वेव्स की हीटिंग की वजह से वो इरोजन हो गया और वहां पर कुछ होल बन गए, कुछ केव्स बन गए, कुछ आर्क बन गए, ओके, वो मटेरियल कट होकर उसकी इरोजन, उसका इरोजन हो गया. उसकी वजह से ये इरोजन वर्क की वजह से जो लैंडफॉर्म फॉर्म हुए उसको क्या क्या कहते हैं, कुछ लैंडफॉर्म सी वेव कट कहते हैं, कुछ लैंडफॉर्म को सी केव्स कहते हैं, सी आर्क्स भी कहते हैं, एंड सी क्लिफ्स भी कहते हैं. Okay, so these all are formed because of the erosional work of the waves. Okay, you can easily understand that when there is a work of there is a word erosion, then you have to understand that something has vanished out. Okay, something has eroded. उसकी क्वांटिटी कम हुई है, उसकी धूप हुई है, ओके, उसका मटेरियल बहकर कहीं तो गया है, केमिकली रिएक्ट होकर या हीटिंग की वजह से. ओके, इज इट क्लियर? Hello guys, am I audible? Okay, कादम्बरी, आयुष, विशाल, कोई डाउट है इसमें? Okay, good. Now see depositional work of sea waves. अभी तो हमने देखा कि सी वेव्स की वजह से इरोजन भी होता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि सी वेव्स अपने साथ कुछ चीजें लाती है. क्या क्या लाती है? पेबल्स लाती है, सैंड पार्टिकल्स लाती है, रॉक पार्टिकल्स लाती है, वाटर भी लाती है, कुछ मिनरल भी उसमें होते हैं. ओके, तो ये मिनरल्स कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं वो हम देखेंगे. डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स. सी द इरोडेड मटेरियल एक्यूमुलेट एट सी बेड. ओके, सी बेड में क्या होता है, ये जो इरोडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब किसी पत्थर का घिसकर जाना, ओके, वो कम कम होता जाता है और वो वाटर में या समंदर में मिक्स हो जाता है और वो कहाँ डिपॉजिट होता है, बेड पर डिपॉजिट होता है. सो इरोडेड मटेरियल एक्यूमुलेट मीन्स दे गेट कलेक्टेड, ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड एट सी बेड. बिकॉज ऑफ टाइड्स they keep on moving towards the coast and away from the coast. So what happens because of the tides are coming, hitting to the coast, they are coming back to the sea. You can see that waves are hitting water coast continuously. After when they hit, they also come back. So to and from motion is continuously getting over there. So that's why because of tides they keep on moving towards the coast. ये जो इरोडेड मटेरियल है, इरोडेड पार्टिकल्स जो है, वो भी आगे पीछे होते रहते हैं, मूविंग टुवर्ड्स एंड कोस्ट एंड अवे फ्रॉम द कोस्ट. कुछ कोस्ट की तरफ जाते हैं, फिर जब वेव अंदर जाती है फिर अंदर जाते हैं, ऐसा उनका साइकिल चलता रहता है. दे बिकम फाइन बिकॉज ऑफ एट्रिशन एंड हीटिंग ईच अदर. अभी उसमें क्या होता है, मिक्सिंग होता रहता है, एट्रिशन एंड हीटिंग होता रहता है ईच अदर. इसकी वजह से वो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स कोर्स पार्टिकल से वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. डिपोजिशन ऑफ सच मटेरियल ऑकर्स एट प्लेसेस
where the effect of wave is less. ओके अभी अगर देखिए कहीं पर समंदर का जो वाटर है बहुत ज्यादा हिल नहीं रहा, ओके आगे पीछे नहीं हो रहा, वहां पर ज्यादा वेव्स हिट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो ट्रैवलिंग है, मूवमेंट जो है वो कम है. So deposition of such material occurs at places where the effect of the wave is less. So landforms like beaches, sandbars, lagoons are formed due to depositional work at sea waves. Okay. आप जब किसी बीच पर विजिट करते हैं तो आपको वहां पर रेती मिलती है, स्मॉल स्मॉल फाइन सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं. ओके तो वहां पर आप किले भी बनाते हैं उस सैंड पार्टिकल से, वहां पर कुछ डायग्राम, आप कुछ मूर्तियां भी, स्कल्पचर भी बना सकते हैं. ओके उसे सैंड आर्ट कहा जाता है, राइट. अब ये सैंड आर्ट वहां पर क्यों डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि वहां पर जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती. ओके सो लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस, सैंड बार्स एंड लगून्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स. ओके सो नाउ आई होप यू हैव गॉट द आइडिया. Try to understand the various landforms by work of sea waves with the help of teachers. Okay? मतलब ये समझिए अभी. Okay? So here give a try. Okay? एक प्रयत्न करून बघा या ठिकाणी काहीतरी विचारले आपण बघूयात. Some pictures of landform produced by the work of sea waves are given below. आता खाली काय दिलं आहे, नीचे क्या दिया हुआ है कि सी वेव्स की वजह से जो लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ है उसके पिक्चर फोटो दिया हुआ है. सी द पिक्चर्स एंड राइट द बॉक्स वेदर दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय इरोजन और डिपोजिशन. अभी आपको पता चलना चाहिए कि जब आप देखेंगे तो कुछ जो चीजें हैं वो डिपोजन की वजह से फॉर्म हुई है, और कुछ जो चीजें हैं, कुछ फोटोज है जो लैंडफॉर्म से वो इरोजन की वजह से फॉर्म हुई है. आपको समझ आना चाहिए, हम देखेंगे अभी. With the help of internet, obtained information regarding the places along Konkan coast where you will find the landforms formed by the sea waves. अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या है, कोकण रीजन है, हमारी जो किनार पट्टी है, सी कोस्ट है, वो लगभग 700 किलोमीटर से शायद. ओके more than 700 kilometers of sea coast is in India, in Maharashtra. Okay, Arabian Sea. So in the Konkan region you can search on the internet that what type of landforms are formed. Beaches are there, or sea caves are there, or anything else there, arc is there. You can easily see on the internet or find on internet. Now, okay, see here, I will ask you one question. Sea caves. So, why sea caves are formed? Is it because of depositional work or it is because of erosion work? Can you tell me this? Okay. Yeah, okay, you are saying, okay, Kadambari is saying erosion work. Anybody else? I need answers from all of you, okay? Okay, Vishal, erosion work. Okay, anybody else? Vineet is there. Vishal, okay, Vineet. Vedant, Ayush, Vaishnavi. Okay, why it is erosion work you think? Can anybody tell me ये erosion work क्यों है? ओके तो मैं बताता हूँ आपको वो क्यों है. क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मटेरियल निकला हुआ है, कुछ मटेरियल यहाँ का घिस गया है, इसकी वजह से उसको केव मतलब किस गुफा का आकार आ गया है उसको, राइट. मतलब यहाँ से मटेरियल निकल कर गया है, इरोजन हुआ है. ओके अभी ये है सेकेंड लगून, ओके, और लायन. सो कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज हाउ इट इज फॉर्म्ड, by which action of sea water it is formed? Lagoon, you can see that sand particles, you can see fine sand particles here. Yes, part of this rock is breakdown. Yes, it is perfect answer. But I have shown you next figure now. Lagoon. So lagoon is formed because of diorite type of
work? Depositional or erosional? What type of work of sea waves? Yes, I need answer from you people. Hello guys, am I audible? Okay, Kadambari, anybody else? I need answer from all of you. There are 6 people over here, but only one person is answering. Okay, visualize 3 persons. Still 3 people are remaining. Vinith, Vedant, Vaishnavi. Okay, you are saying it is because of the erosion. Which figure? Lagoon. See here, lagoon. You can see. So why this is happened, or why this landform is formed? By which action? Erosion or by deposition? Okay, which option? Why it is formed? Is it formed because of erosion or because of deposition? Okay, Vedant is saying deposition. Okay, guys. So the perfect answer is it is because of the deposition. Lagoons are found because of the deposition, because you can easily see in this figure that sand particles are formed or accumulated at the coast. This white part you are seeing here, okay, this white part or brownish part, it is nothing but a, what it is? तो गाइज बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है आपको? हेलो, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई लिव नियर दी रोड. ओके, वो मैं रास्ते के नजदीक रहता हूँ, इसलिए कुछ आपको आवाज आ रही होगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, ओके. तो लैगून्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? डिपोजिशन वर्क. अभी यहाँ क्या है? वेव कट प्लेटफॉर्म. नाउ टेल मी हाउ these are formed, by which process? Wave cut platform. See, there is a platform like structure over there. Okay, am I audible now? So wave cut platforms are formed because of what? Wave cut platform. ओके, एक बार फिर बताइए आप मुझे, एक बार फिर टाइप कीजिए सब लोग. ओके, कादम्बरी सिंह इज डिपोजिशन. ओके, तो सबका आंसर यही है, डिपोजिशन, वेव कट प्लेटफॉर्म. ये देखिए वेव कट प्लेटफॉर्म. ओके, तो गाइज वहां पर सीधा नेम दिया गया है. क्या है? सीधे नेम में ही है कट, वेव कट प्लेटफॉर्म. इट इज अ कट प्लेटफॉर्म. इट मीन्स व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन्स? इट इज कट प्लेटफॉर्म. इसका मतलब क्या है? कट हो रहा है मतलब इरोजन हो रहा है. वहां पर किसी चीज का डिपोजिशन नहीं हो रहा है. ओके, वहां पर किसी जमाने में क्या होगा? एक रॉक होगा, लेकिन उस रॉक को कट होकर 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 उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कट प्लेटफॉर्म. यू गॉट इट और नॉट? In the name itself, there is a cut platform. There is the word cut, and from the cut itself, you should have understand it. Okay, that cutting means not deposition. Cutting means erosion. Okay, and what is the meaning of deposition? Deposition मतलब अगर वाटर में कुछ चीजें बहकर आई है तो वो वहां पर जाकर वो रुक जाएगी, वहां पर जाकर वो
कलेक्ट हो जाएगी, वहीं पर वो डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया नाउ। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, पता ले देखते आप कर सकते हैं कि यहाँ पर है सी आर्क। सी आर्क, आर्क का मतलब ये जो कमान देख रहे हैं ना पत्थर की, ओके, वो आर्क जो है ये वो किसकी वजह से फॉर्म हुई होगी, आपको क्या लगता है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ओके, कादम्बरी सिंह इरोजन। एनीबडी एल्स? ओके ओके, सो इरोजन की वजह से वहां का पत्थर कट होते गया, इरोजन होता गया और वहां पर एक होल बन गया और उसका आर्क फॉर्म हुआ, राइट? ओके, तो अभी मुझे लगता है आपको कट प्लेटफॉर्म का भी पता चला कि कट प्लेटफॉर्म भी इरोजन की वजह से हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इधर है। ओके, यहाँ पर सी क्लिफ म्हणजे त्याला समुद्री कडा असं म्हटलं जातं, कड्यासारखा आकार, यू कॅन सी, राइट? सी क्लिफ। सो व्हाट डू यू थिंक, क्लिफ किसकी वजह से फॉर्म हुआ होगा? वहां पर बहुत तीखा और वी कैन से ढलान है, वहां पर बहुत ज्यादा तीव्र उतार है, वहां पर क्लिफ है। तो क्लिफ किसकी वजह से हो सकता है? आप डिपोजिशन। ओके, क्लिफ का मतलब क्या है? क्लिफ का मतलब ये नहीं है, ये नीचे जो गिरा है ना इसको क्लिफ नहीं कहते, इसको नहीं क्लिफ कहते। ये जो खड़ा है ना इसको क्लिफ कहते। देखिए इसको क्लिफ कहते हैं, खड़ा जो है उसको क्लिफ कहते हैं। तो अब किसकी वजह से ये फॉर्म होगा, अभी मैं देखता हूँ। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, तो कादम्बरी आपको पता चलना चाहिए इस प्रकार कि ये इरोजन की वजह से होगा। ओके, अगर कई बार कोई भी क्लिफ फॉर्म हो रहा है तो वो किसी की कटिंग की वजह से हो रहा है। ओके, जब हम कुछ कट करते हैं वहां पर एक शार्प एज आता है कि वो कटिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है और क्लिफ बन जाता है। ये डिपोजिशन की वजह से नहीं हो सकता। ओके, तो एवरीबडी गॉट इट अबाउट दिस? सी क्लिफ इज अ रिजल्ट ऑफ erosion. It is not because of deposition. Okay, I hope you have understood. Now we will see the next figure now. See here, beach. Now tell me how beach are formed. Tell me the answer. Okay, I need perfect answer right now. Okay, deposition, yeah, this is perfect answer. This is correct answer. Because you can easily see that sea waves are carrying these sand particles with it, fine particles. And when they reaches to the sea coast, it is get deposited at the place. So whenever you visit the beach, okay, you can see these sand particles, fine sand particles over there, right? This is the beach. And now next one is sandbar. So can you tell me sandbar are found because of what? Okay, so this is also deposition. Yes, correct answer. Because sand is carry out or transported to the sea coast, right? To the coast of the coastal area. Okay. Now what is this? Let's see. Identify the landform made by waves and write their names in the given picture. ओके, अभी हमने सब कुछ देखा, यहाँ पर जो है वो हमने देखा। अभी इसका क्या हो सकता है? ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी, राइट? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन दैट how sea waves are responsible for the different landforms that are formed. Now here you can see all the pictures in this picture: sea cave, wave cut platform, sea cliff, sea arc, sea stacks. All these are formed because of erosion, because of cutting up something, some rock from it. Okay, all these are but nothing but the
landforms that are because of the erosion work of the sea waves, right? So now we have completed the work of sea waves and landforms formed because of it. I hope everything is clear in that factor. And now I will just ask you about your doubts over here, Q&A, questions and any questions to you. So anybody having any doubt here and questions so that I can clear all of it? Okay, you don't have any doubt, but you don't give any answer, right? Okay, what last part remains? That this photo, na? This photo, right? So basically, in this photo, you can see all the types of landform that are formed because of the sea waves. You can see erosion work also, and you can see deposition work also. If you see this part of the figure over, you can see sea arc over here. Now sea arc are formed because of the erosional work. Here you can see deposition work. All this, see, you can see what are here, small sand particles are here, and these are nothing but the depositional work. So here arc is because of the eroded work or erosion work. Here sand is because of the deposition work. Now also you can see uh, cliff, sea cliff over here. Okay, because of this water, sea cliffs are formed. Okay, so likewise that there are different factors over here. Okay, now you have to understand everything in that. I hope the last figure is also clear to you, Kadambari. Yeah, okay, fine. So I think that you did not understand the last figure. So groundwork, the last part is remaining. Okay, अब तक हमने किस किस चीज का वर्क देखा, मैं आपको पूछता हूँ, बताइए मुझे। अब तक हमने कौन कौन से एजेंट देखे जिसकी वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्म हुए हैं? कोई बता सकता है मुझे? अब तक हमने किस किस चीज का इरोजन वर्क देखा और किस किस चीज की वजह से इरोजन पृथ्वी पर और अर्थ पर होता है? Hello, can you tell me? Okay, Vishal is saying water. Now next one is who will tell me the answer? Kadambari is also saying water. Only water is there or anything else is there? Another factors. ओके, डस्ट पार्टिकल वाटर। ओके ठीक है, लेकिन आपने जो स्पेसिफिक है वो स्पेसिफिक नहीं बताया। स्पेसिफिक क्या होता है? रिवर। ओके, रिवर की वजह से लैंडफॉर्म होते हैं। रिवर अपने साथ कुछ कुछ चीजें ले जाती है। रिवर अपने वाटर की वजह से क्या क्या करती है? कुछ इरोजन भी करती है और डिपोजिट भी करती है। उसके बाद हमने देखा ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। जो बर्फ नीचे नीचे ढलते हैं, ओके, वो बर्फ भी इरोजन भी करता है, आगे जाकर डिपोजिशन भी करता है। उसके बाद हमने क्या देखा? सी वाटर देखा। सी वाटर क्या करता है? सी वाटर इरोजन भी करता है और डिपोजिशन भी करता है, और उसकी वजह से जो जो चीजें फॉर्म होती है, जो जो अर्थ सरफेस पे चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं हम लैंडफॉर्म। तब तक हमने तीन चीजों के लिए देखा। एक रिवर वाटर के लिए देखा, रिवर की वजह से कैसा होता है। उसके बाद ग्लेशियर की वजह से क्या क्या होता है। उसके बाद सी वेव्स की वजह से क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे, यस, और एक रह गया, विंड की वजह से भी होता है, राइट? डिपोजिशनल वर्क बिकॉज ऑफ द विंड और द वर्क ऑफ द विंड। देखा क्या नहीं देखा? ओके, तो अगर कोई चैप्टर आप याद करना चाहते हैं
if you want to revise anything, you want to remember anything, any chapter, then you have to structure the chapter like this. जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में क्या है. ओके, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस टू में क्या है, बेसिकली उसमें हमने देखा रिवर वाटर, ग्लेशियर, उसके बाद हमने देखा विंड, उसके बाद हमने देखा सी वेव्स. ओके, अब इन एक एक का हम क्या हमने क्या देखा है, एक एक का इरोजन वर्क कैसे होता है वो देखा है. उसके बाद ट्रांसपोर्ट अपने साथ क्या क्या करते हैं वो देखा. उसके बाद डिपोजिशन कहाँ कहाँ होता है वो देखा. और ये सब करने के बाद अलग अलग जो है चीजें वो अपनी अपनी लैंडफॉर्म्स कैसे बनाती है वो हमने देखा. अगर आप किसी चैप्टर को इस पद्धति से और इस तरह से याद करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा और उसके बीच में जो पॉइंट होंगे वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ओके, ओके विशाल, मैं बताऊंगा. उससे पहले बताओ, मैंने आपको जो अभी बताया, जो समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं, कि किसी चैप्टर को रिमेम्बर कैसे करना है, ध्यान में कैसे रखना है. ओके, अगर चैप्टर आप खोलेंगे, बुक खोलेंगे, तो आपको ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या. इस चैप्टर में क्या है, लैंड फॉर्म्स देखने वाले हैं हम. लैंड फॉर्म्स क्यों होंगे, इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से होंगे. अब डिपोजिशन एंड इरोजन क्यों क्यों होता है और किन किन चीजों से होता है, वाटर से होता है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है, सी वाटर से होता है. ओके, इन सब चीजों की वजह से क्या क्या होता है, लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं, हम देखेंगे. अभी जो माउंट एवरेस्ट है, ओके, वो कहाँ पर है, वो हिमालय में है. ओके, हिमाचल जो हिमालयन रेंज है, माउंटेन रेंज, वहां पर है. अभी वो किसने देखा, वो एवरेस्ट करके एक ब्रिटिश पर्सन था. ओके, उस ब्रिटिश पर्सन ने पहली बार जो दुनिया का सबसे ऊपर का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन है उसको उसने विजिट किया. अब उसने जब उसको विजिट किया तो उसने दुनिया को बताया कि यस, ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और मैंने वहां पर विजिट किया है. तो उसको क्रेडिट देने के लिए उस माउंटेन का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया. ओके, इज इट क्लियर? Okay, I want to ask to another person, another people, that do you understand anything? Do you got it? How to remember this lesson actually? Nice. So I'm expecting this from you people, okay? Now the last part of the lesson we will see the work of groundwater and landforms produced because of this work of groundwater. Okay, हमने पहले देखा रिवर वाटर, उसके बाद देखा ग्लेशियर्स, उसके बाद देखा विंड, उसके बाद देखा सी वाटर एंड लैंडफॉर्म्स. अब देखेंगे ग्राउंड वाटर की वजह से, मतलब जमीन के अंदर जो पानी है हम कुएं की मदद से उसको निकालते हैं, बोरवेल की मदद से हम उसको निकालते हैं. ओके, तो वो नीचे नीचे जो बहता जाता है यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो उसके वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. ओके, उसकी वजह से कुछ इरोजन होता है, वो भी अपने साथ कुछ पत्थर लेके चलता है, सैंड पार्टिकल्स लेके चलता है, मिनरल्स लेके चलता है, कहीं तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं. उसकी वजह से जो चेंजेस आता है अर्थ सरफेस पे या अंडर द अर्थ सरफेस, ओके, बिलो द अर्थ सरफेस, तो हो क्या क्या हो, तो ग्राउंड वाटर का हम देखेंगे. सो आर यू रेडी फॉर इट, so that I can start it? Okay, Vedant, Ayush, Vaishnavi, Ghatkar. I'm not getting response from Vaishnavi, Vineet. Okay, Vedant. Okay, nice. So, the rainwater seeps below the earth's surface through porous rocks or cracks in the rocks. Okay, क्या होता है,
पोरस मतलब उसमें होल होते हैं. सच्छिद्र मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं सच्छिद्र. ओके. सो द पोरस रॉक में क्या होता है, जब रेन वाटर आता है सरफेस पे बहता है तो वो पोरस रॉक में जाता है, उसकी वजह से वो नीचे पर्कुलेट होता है, वो वॉटर नीचे सोक हो जाता है. मराठीमध्ये त्याला झिरपणं असं म्हटलं जातं. वो कहाँ से होता है, पोरस रॉक से और क्रैक्स इन द रॉक. कहाँ पर रॉक पर क्रैक होगा तो उसके ऊपर से अगर कोई वाटर बह रहा होगा तो वाटर नीचे सिप हो जाता है, नीचे पर्कुलेट हो जाता है वाटर. दिस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द नॉन पोरस लेयर ऑफ द रॉक. अभी देखिए वाटर नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन कहाँ पर क्या है, जो पत्थर है नीचे का जो रॉक है, इट इज नॉन पोरस. Okay, so water cannot go down that rock. It cannot transfer or it cannot travel below that rock because it is hard and it is non-porous. So that's why at that place water is get stored or water is get accumulated. This accumulated water is called as groundwater. अभी ये ग्राउंड में जाता है, अंदर जाता है, ओके, जमीन के नीचे, इसकी वजह से इसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर. ओके. अभी ये वाटर हम कैसे निकालते हैं, वाटर हम निकालते हैं वेल की वजह से, मदद से. ओके. जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, बोरवेल्स होते हैं, उनकी वजह से. ओके. द सोल्यूबल मिनरल्स इन द वाटर गेट डिसॉल्व्ड एंड फ्लो विद द ग्राउंड वाटर. अब क्या होता है, ये नीचे जब जाता है तो नीचे पत्थर होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं मिट्टी में भी, वो मिट्टी में जो मिनरल्स है वो भी उसमें बहकर जाते हैं अपने साथ वाटर के साथ. ओके. So the soluble minerals in the water get dissolved and flow with the groundwater. This is the erosional work of the groundwater. अभी इसकी वजह से क्या होता है, जो पोरस रॉक होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बहकर नीचे जाते हैं तो रॉक पोरस हो जाता है और भी पोरस हो जाता है. उसका मतलब क्या है, रॉक में से कुछ पार्ट कट होकर नीचे जाता है मिनरल्स, तो रॉक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसका इरोजन हो जाता है. ओके. दिस इज द इरोजनल वर्क बाय द ग्राउंड वाटर. ओके. When the groundwater evaporates or volume of the soluble mineral is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts. अभी देखिए क्या होता है, कभी कभी तो इतना ज्यादा मिनरल वाटर में मिक्स हो जाता है कि वाटर में वो कहीं तो स्टिक हो जाता है, कहीं तो व्हाट वी कैन से डिपॉजिट हो जाता है. ओके. और जो वाटर है वो अगर इवेपोरेट हो गया तो क्या होगा, उसमें से जो मिनरल है वो मिनरल तो इवेपोरेट नहीं होगा, वो सॉलिड है, वो मिनरल तो वहां पर ही डिपॉजिट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, अगर अब किसी बाउल है उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा सॉल्ट डालेंगे और मिक्स करेंगे, फिर कुछ देर बाद आप वो सनलाइट के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, सन की हीट की वजह से वो जो वाटर वेपर है वाटर वो निकल जाएगा और नीचे क्या रहेगा, फिर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा. उसी वजह से ग्राउंड वाटर में भी होता है. ओके. वो जो सॉल्ट होता है, जो मिनरल्स होते हैं उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं वहां पर. सो द डिपोजिशन ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल स्टार्ट्स. लैंड फॉर्म्स लाइक सिंक होल, लाइमस्टोन केव्स, ओके, stalactites and stalagmites are formed. तो ये ग्राउंड वाटर की इरोजन की वक्त से क्या क्या फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म कौन कौन से फॉर्म होते हैं, क्या क्या होता है, सिंक होल फॉर्म होते हैं, मतलब कुछ होल्स होंगे कहाँ पर. लाइमस्टोन केव्स, लाइमस्टोन मतलब संगमरवर की जो केव्स है, गुफाएं होती है, वो तैयार हो जाती है, क्योंकि संगमरवर मतलब वो एक प्रकार का पत्थर है. ओके. स्टैलेक्टाइट्स फॉर्म होते हैं एंड स्टैलेग्माइट्स आर फॉर्म. दीज आर सम टाइप्स ऑफ पत्थर्स आई थिंक और रॉक्स. Thus, the groundwater carries out erosion, transportation and depositional work. मतलब ये ग्राउंड वाटर की चीजें वजह से हर चीज होती है, इरोजन भी हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, इरोजन जो मटेरियल उसमें से निकलता है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हुआ मटेरियल कहीं पर डिपॉजिट भी हो जाता है. ओके. तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्राउंड वाटर टेबल. क्या है अभी ग्राउंड वाटर टेबल? The upper surface of the water accumulated below the ground is called water table. ओके. मतलब ग्राउंड में, उसके ऊपर ग्राउंड में हमें पता है कि वाटर स्टोर हुआ होता है, तो उससे क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं. फैक्टर्स लाइक सीजन्स, porosity of the rocks, amount of rainfall, etc. affect the level of water table.
ओके, म्हणतो आपण जी जलपातळी आपण जो म्हणतो की जलपातळी भूगर्भातील पाण्याची जी पातळी आहे ती खाली खाली जात आहे आपण म्हणतो. कारण का की जर एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर ग्राउंडचे जे वॉटर जे अवेलेबल आहे तर ते ग्राउंड वॉटर काय होतं, त्याची पातळी जी आहे खाली जाते, त्याची जी लेवल आहे ती खाली जाते. वॉटर जो टेबल आहे that water table level get affected. Okay, the water table is closer to the ground during rainy season while it is deeper in the summer. अभी हमें पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर टेबल इज क्लोजर मतलब ग्राउंड की जो लेवल है, मतलब वाटर की जो लेवल है ग्राउंड में वो बहुत ज्यादा होती है इन रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में उसमें वाटर की एडिशन होती रहती है. और समर में क्या होता है, वो कोई पानी नहीं रहता, बारिश नहीं रहती, तो वो हम कुएं से पानी निकलते रहते और उसकी जो लेवल है वो नीचे जाती रहती है. ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ पिक्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं. सिंक होल. अभी सिंक होल क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पर आप स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये जो आप कुछ पॉइंटेड पोर्शंस यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली मिनरल्स है. और वो मिनरल्स धीरे धीरे डिपॉजिट हुए, क्योंकि वहां से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहता है नीचे. और हमें पता है वाटर में कुछ मिनरल्स डिजोल्व होते रहते हैं और वो मिनरल्स यहाँ पर डिपॉजिट होते रहते हैं, इसलिए उनका जो शेप है वो किसी पॉइंटेड टाइप है, क्योंकि जो वाटर है वह उनकी टिप से नीचे नीचे चलता रहता है और गिरता रहता है. Okay guys, so identify the landforms formed by the groundwater in the given diagram. So can you see the diagram given below? What kind of diagram is it? Can you tell me what type of landform it is by groundwater in the given diagram? 30th page number. Okay, so can you tell me guys, do you understand this? Sir, can I tell in? Okay, you can write down in Marathi also Kadambari. Actually, ये जो स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट जो है वो केव्स है, वहां पर वो वाटर की वजह से डिपॉजिट हुए. ये वाला शेप और ये वाला शेप आपको सिमिलर दिख रहा होगा. ओके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बेसिकली ये स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेग्माइट है. ओके, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट. दिस इज द वेव फॉर्म और लैंड फॉर्म that is formed because of the groundwater action of groundwater or work of the groundwater. So you got it guys? Okay, so let's see here. Which are limestone caves, stalactites and stalagmites found in Maharashtra? तर त्यांनी महाराष्ट्र बद्दल विचारलंय की महाराष्ट्रामध्ये लाइमस्टोन केव्स कुठे आहेत आणि स्टॅलेक्टाइट केव्स कुठे आहेत. Why are the landform formed in the limestone called karst? तो ये मुझे भी नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. थिंक अबाउट इट. रामू हैज टू डिग अ वेल इन हिज फार्म. म्हणजे रामूला त्याच्या शेतामध्ये एक विहीर बनवायची आहे. बट ही इज इन अ डायलेमा as to which season he should dig so that there is water supply for longer time. ओके, तर रामूला विहीर खोदायची, परंतु तो एका द्विधा मनस्थितीत सापडलाय की
मी कोणत्या सीझन मध्ये विहीर खोदू जेणेकरून मला जे पाणी आहे ते खूप दीर्घकाळ टिकलं पाहिजे. ओके, तो व्हॉट विल यू सजेस्ट टू राम? तर रामूला आपण काय सांगा? ओके, अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला विचारलाय. ओके, रेनी सीजन ना, रेनी सीजन में अगर वो वेल खोदेगा तो क्या होगा, पानी जो है वो जल्दी लग जाएगा, क्योंकि वी नो वाटर टेबल जो लेवल है वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा रहती. वो थोड़ा भी नीचे खोदेगा तो कहीं पर तो उसको पानी लगेगा. अगर वो समर में खोदेगा तो क्या होगा, समर में उसको बहुत नीचे खोदनी पड़ेगी. और अगर वो बहुत नीचे खोदेगा, बहुत गहरी खोदेगा तो क्या होगा, उसे रेनी सीजन में भी पानी मिलेगा और समर सीजन में भी पानी मिलेगा. क्योंकि जैसे जैसे सीजन बदलता है, समर आ जाता है तो क्या होता है कि वाटर लेवल कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल. और उसकी वजह से अगर आपने रेनी सीजन में खोदी तो वो बहुत छोटी हो जाएगी. ओके, सो इट इज लाइक दिस. सो गाइस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ इन दिस लेसन? Because we have completed whole lesson and I have also told you how to remember this lesson, right? Okay, if you don't have doubt, then you should give answers also. Now, what will I do? I will just post this exercise on Google Classroom. And as usual, नेहमीप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे, ती जी notebook आणि so is my voice clear now? ठीक है guys, आप करेंगे, मुझे पता है आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ. मतलब वो आप पोस्ट कर देता हूँ, आप चेक कीजिए और अपने टाइम के हिसाब कुछ 2-4 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए और पोस्ट कर दीजिए. इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रिवीजन है वो जल्दी हो जाएगी. क्योंकि अगर आपको कुछ दिया नहीं ऐसे लिखने के लिए या कुछ स्टडी के लिए, तो आप लोग डायरेक्टली हफ्ते भर के बाद वो चीज देखते हैं, बीच में कुछ नहीं करते. अगर कुछ सी चीज को आप हफ्ते में बार में एक ही देखते हो तो कैसे चलेगा, आपको कैसे ध्यान रहेगा एवरीथिंग. So your exam starts from 23rd August. Which exam? Practice exam. Okay, it is unit test ना, good. तो चैप्टर्स कितने हैं यूनिट टेस्ट में विशाल? ओके, तो 4 लेसन तो हमने कंप्लीट कर दिए, राइट? ओके, तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि चीजें ध्यान में कैसे रखनी है, यूनिट ध्यान में कैसे रखने हैं, तो आपको क्या करना है, रिवाइज कीजिए विशाल. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट. इट इज ऑन मंडे, राइट? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे. तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया उसी प्रकार आपको तैयारी करनी है, स्टडी करनी है.
ये सबके लिए। ओके ओके, तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए सबको गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। आई होप टुडेज लेक्चर वाज गुड। ओके, थैंक यू।